اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے اور ہر کسی نے قبر میں جانا ہے، اور ایک دن آئے گا جب ہر کوئی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو یہاں پر سبھی بھائی سبھی بہنیں ایک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور شہید کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جس کا شاید دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی درجہ ہی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اور اس کا جب پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جو ہی اس شہید کی روح اپنے جسم سے نکلتی ہے تو وہ ویسے ہی جنت میں پہنچا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کے الفاظ یوں ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبز پرندوں کے اندر شہیدوں کی روحیں جنت کے باغوں کی سیر کرتی رہتی ہیں اور عرش کے نیچے کندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی وہ آیت موجود ہے جس میں میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، یعنی ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور اسی طرح میرا اللہ کریم سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان کو اپنے رب کے ہاں سے رزق ملتا ہے۔ اور ایک بات میں اور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سوائے یہ بھی حدیث میں ہے کہ شہید کا ایک گناہ یا اس کا ایک عمل، یعنی اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہو تو وہ اس کا معاف نہیں ہوتا، باقی سارے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، جو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا کر دے۔ تو یہ دیکھیے کہ جو شہید ہوتا ہے یا جس کو شہید کا درجہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو ایک طرح سے اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے اور وہ جنت کے فائدے ساتھ ہی اٹھانے لگتا ہے، مگر فزیکلی طور پر اور پراپر طریقے سے جو اس کی جنت کی زندگی شروع ہوگی وہ تو پھر قیامت کے بعد ہی شروع ہوگی۔ لیکن یہ جو باتیں میں آپ کو بیان کر چکا ہوں یہ برزخ کی باتیں ہیں کہ برزخ میں بھی انسان کو دوزخ اور جنت ملتی ہے، جس طرح ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہاں پر وہ چند میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو بظاہر طبی موت یا ویسے وفات پاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے مرنے والوں میں سے کسے شہید سمجھتے ہو؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے ہم اسے شہید سمجھتے ہیں۔ جس طرح میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اس کا تو درجہ ہی کیا ہے، جس کا جسم جس کی جان اللہ کے راستے میں جاتی ہے، اس کے بارے میں تو ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ شہید اپنی قبر میں اس طرح سوتا ہے جس طرح پہلی رات کی دلہن۔ سبحان اللہ۔ تو جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم تو اسے سمجھتے ہیں جس کو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہو، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہو تو پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے،
तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर शहीद और कौन है? तो फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अक्दस से इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि एक जो अल्लाह की राह में कत्ल किया गया वो शहीद है, और नंबर 2 जो अल्लाह की राह में निकला और किसी मार्के जिहाद में शामिल हुए बगैर मर गया। यानी ये देखिए कि अल्लाह ताला की कितनी रहमत है कि एक बंदा सिर्फ निकला घर से कि मैं जिहाद में शामिल हूं, लेकिन वो शामिल ना हुआ और उससे पहले उसको मौत ने दबोच लिया। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो भी शहीद है। और उसके अलावा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 3 जो अल्लाह के दीन की किसी भी खिदमत के लिए निकला और उसी दौरान मर गया वो भी शहीद है। और नंबर 4 जो तौन की बीमारी से मर गया वो भी शहीद है। और 5वां नंबर जो पेट की बीमारी से मर गया वो भी शहीद है। राशिद बिन हबैश रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबादा बिन सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु की अयादत यानी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ लाए, तो आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि मेरी उम्मत के शहीद कौन कौन है? तो हजरत उबादा बिन सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की राह में मुसीबत पर सब्र करने और अजर सवाब का यकीन रखने वाला। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी तरह तो मेरी उम्मत के शहीद बहुत कम हो गए। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, अल्लाह जल्ला शानुहू की राह में कत्ल होना शहादत है, और तौन की मौत भी शहादत है, और डूबना यानी पानी में डूबने से मौत वाक़या होना शहादत है। और बल्कि एक जगह पर तो ये भी आता है कि जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी पानी में डूब के मरता है तो उसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से दुगना शहादत का सवाब अता फरमाता है। और पेट की बीमारी शहादत है, और विलादत के बाद नफास की हालत में मरने वाली को उसकी वो औलाद जिसकी विलादत हुई और इसी विलादत की वजह से वो अल्लाह की बंदी मर गई, वो अपनी कटी हुई नाफ से जन्नत में खींच ली जाती है। और जलने की वजह से मौत होना ये भी शहादत के दर्जे में आता है। और सल की बीमारी की वजह से भी मौत होना शहादत है। सल की भी मुख्तलिफ शरह मिलती है, जिनका हासिल ये है कि सल फेफड़ों की बीमारी है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने माल की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया वो भी शहीद है, और जो अपने घर वालों की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया वो भी शहीद है, और जो अपनी जान की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया वो भी शहीद है, और अपने दीन की हिफाजत करते हुए जो कत्ल किया गया हो वो भी शहीद है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इन अहादीस की रोशनी में शहीद की बहुत सारी इकसाम सामने आती हैं। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो वो मुसलमानों के यकीनी इजमा के मुताबिक शहीद है, और ये शहीद अफजल तरीन शहीद है। और वो जो अल्लाह की राह में निकला और मौत वाक़या हो गई, मसलन गाजी महाजिर वगैरह, और तौन की बीमारी से मरने वाला, इन सब को शहादत का दर्जा अल्लाह ताला अपनी रहमत से अता फरमाएगा। पेट की बीमारी से मरने वाला, डूब के मरने वाला, मलबे में दबकर मरने वाला, और जातुल जम से मरने वाला। जातुल जम वो बीमारी है जिसमें अमूमन पेट के फुलाव की वजह से या कभी किसी और सबब से पसलियों के अंदरूनी अतराफ में वरम यानी सूजन हो जाती है, जो मौत का सबब बनती है। और आग से जलने वाला भी वो शहीद है। और हमल की वजह से मरने वाली ऐसी औरत जिसके पेट में बच्चा बन चुका हो, और वो भी अल्लाह की रहमत से शहादत के दर्जे को पहुंचेगी। और विलादत के बाद विलादत की तकलीफ से मरने वाली औरत, और फेफड़ों की बीमारी यानी सेल की वजह से मरने वाला, और एक शहीद। जब उम्मत में एतकादी और अमली गुमराही फैल जाए तो इस वक्त सुन्नत पर
मजबूती से कायम रहने वाला शहीद है। सुभान अल्लाह। और जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी सुबह फजर के बाद 3 बार औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और उसके बाद सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़े तो अल्लाह पाक की तरफ से 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं कि वो इसके लिए इस्तगफार करे। अगर वो दिन को पढ़ता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार करते हैं। और अगर वो इस दिन मरे तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि वो शहादत के दर्जे में होगा। और जो शाम को अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी ये कलमात पढ़े और उसके बाद सूरह हशर की आखिरी आयत की तिलावत करे यानी पढ़े, तो अगर वो सुबह तक मर गया तो अल्लाह ताला उसको भी अपनी रहमत से शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। और ये अमल बड़ा खूबसूरत अमल है। सूरह हशर कुरान मजीद के 28वें पारे की जीनत है और कोई बहुत बड़ी आयत नहीं है, छोटी सी आयत है। सिर्फ 3 बार आपने औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और उसके बाद आपने सिर्फ एक बार सूरह हशर की आखिरी आयत पढ़नी है हुवल्लाहुल अज़ीज़ से शुरू करके। तो कितना प्यारा और बेहतरीन इसका अजर है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। और एक किसी मूजी यानी तकलीफ देने वाले जानवर मसलन सांप वगैरह के काटने से मरा, अल्लाह ताला उसको भी शहादत अता करेगा। और एक जो सच्चे दिल से शहादत पाने की दुआ करे। तो यहाँ पर है क्या कि अमलों का दारोमदार नियतों पर है। और मेरा अल्लाह करीम इतना रहमान है कि जो अल्लाह का बंदे अल्लाह की बंदी सिर्फ अपने दिल में ये नियत कर ले कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मौका मिला तो मैं जरूर जिहाद में हिस्सा लूंगा या लूंगी, तो उसी वक्त से अल्लाह ताला की रहमत से उसके नामा माल में शहादत का दर्जा लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और एक वो शहीद जो तिल्बे इल्म में मरे तो अल्लाह ताला की रहमत से वो भी शहीद है। और तिल्बे इल्म में मरने वाले से मुराद वो शख्स है जो हुसूल इल्म और दरसों और तदरीस में मशगूल हो या तसनीफ या तलीफ में मसरूफ हो या किसी इल्मी मजलिस में हाजिर हो। जिस शख्स ने अपनी जिंदगी लोगों की मेहमानदारी और खातिरदारी और खातिर तवाज़ा में गुजारी वो भी शहीद है। और जो अल्लाह का बंदा मैदान कारज़ार में जख्मी होकर फौरन ना मर जाए बल्कि कम से कम इतनी देर तक जिंदा रहे कि दुनिया की किसी भी चीज से फायदा उठाए तो वो भी शहीद है। और जो मुसलमान अपने मर्ज में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को 40 मरतबा पढ़े और फिर इसी मर्ज में मर जाए तो इसे भी शहीद का सवाब दिया जाता है। और अगर इससे छुटकारा मिल जाए और वो इस हाल में सेहतमंद होता है तो अल्लाह ताला की रहमत से उसकी मगफरत हो चुकी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे और आपके आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक भेजता है तो अल्लाह ताला इस बंदे पर 10 बार अपनी रहमत नाज़िल फरमाते हैं। और फरमाया जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 100 मरतबा अपनी रहमत को नाज़िल फरमाते हैं। और जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक भेजता है अल्लाह ताला इसकी दोनों आंखों के दरमियान बरात यानी नफाक और आग से निजात लिख देते हैं। और सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत इसका अजर है। अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। और मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता और दुरूद पाक पढ़ने का अजर इस दुनिया में भी अल्लाह ताला अता करता है और आखिरत के दिन भी यकीनन हमें उसका बेहतरीन अजर मिलेगा। दुरूद पाक मुश्किलातों परेशानियों से निकालता है। दुरूद पाक रिज़्क़ को बढ़ाता है। दुरूद पाक अल्लाह की रहमत को लेने का जरिया है। दुरूद पाक से हमारा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता इस्तवार होता है। अल्लाह ताला से दुआ। और ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है कि अगर किसी अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदी को सुकून की मौत आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको मुझे हम सब को शहादत अता फरमाए और हमारे ईमान को सलामत रखे। आमीन सुम आमीन।
आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।